Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We bless you, Lord. King of glory, we praise your mighty name. We come into your presence through the shed blood on the cross of Calvary. Jesus, we come under your blood, the blood shed on the cross of Calvary. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. We praise your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dhanyavad. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Hallelujah. सबको जय मसीह की good morning. For some it will be good evening. For some it will be very early morning. For some it will be like midday. Hallelujah. You are all welcome in the name of the Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. People are joining from different parts of the world. I welcome you. Hallelujah. In Jesus' wonderful name. Hallelujah. In Jesus' glorious name, I welcome you all. Mr. George from the US, I welcome you in the mighty name of the Lord Jesus of Nazareth. Thank you for joining us. Thank you for being part of what the Lord is doing here in India, and also the people that are connecting from various parts of the world. Even though mostly I would be speaking in Hindi, but I will be giving certain punchlines in English. Hallelujah. We cherish your presence, Mr. George. Hallelujah. The Lord bless you and bless your family. May He keep you all under the precious hedge of the blood. Hallelujah. Where no demon, where no sickness, where no plague can come. Hallelujah. Father, I speak supernatural protection over your people, supernatural protection, divine protection over them that fear you, over them that walk according to your word, over them that pursue holiness, righteousness, and purity. Hallelujah. Over them that love you more than anything else in this universe. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. पास्टर सतपाल जी, जय मसीह की. मलकियत जी, गिल जी, जय मसीह की. सोनिया नार, दीपू मदर्स, Henry Joseph, brother, thank you. God bless you. Sandeep, Pastor Ji, Ruisha Masi, Anil from UK, thank you. Joyce Munir, Sister Ji, Jamasi ki. She was part of Pastor Ernest's church long back. Hallelujah. The Lord bless you. Brother Raman Khan. Sunita Guria, the Lord bless you. Lalit Mehra Ji, hallelujah. Lord bless you. Darshan Singh Ji from Jalandhar. I greet you all in the mighty name of Jesus. Brother Ravi Prakash Gupta, he is in Manila right now. He is on the ship, cruise ship. The Lord bless you, Deepu mother. Hallelujah. Hallelujah. Mahir ji, Jai Masih ki. Bless you all in Jesus' name. Hallelujah. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you love us so much. You loved us to the point of clothing your Son in flesh and bones. Your eternal Son, your everlasting Son, uncreated, the creator of the universe. You put flesh and bones on him, and you made him die a horrific death on the cross of Calvary. Thank you, Father. Thank you, the punishment of our sins fell upon him. Thank you that he became the ransom so that we might go free. Thank you that he took the crown of thorns so that we may receive the crown of life. Thank you for his precious blood. We deeply appreciate you for the blood exchange that took place on the cross of Calvary. We are what we are who we are because of the blood of Jesus. So Father, I plead that blood over each and every person. Hallelujah. तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं. Hallelujah. We bless you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. 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 प्रभु आशीष दीजिए. भगवत प्रसाद जी को आशीष दीजिए. Bless Tanuja Seth and Bobby Art and
Pastor Sam from Chandigarh. Bless these guys, Lord, I pray. Bless Prabdeep. May your hand, your blessing be upon him. I pray for Monica Christian, for her children, Father, that you would visit them and bless them in a very special manner. Brother Harpal Bajwa, the Lord bless you. Minu Sood, the Lord bless you and your household. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi Sujit, the hand of the Lord be upon you and your family. Gopi Chida, the Lord bless you. Abhijit Singh, I speak the blessing of the Lord over your life. Brother Samuel Manny, I speak the blessing. Hallelujah. I speak the precious blood of the Lamb over your life. Hallelujah. May all your needs be met out of his heavenly resources. Hallelujah. May the Lord stretch forth his hand of supernatural provision over Brother Samuel Mani. Hallelujah. Dhanyavad Prabhu. Hallelujah. Dhanyavad. Lord, we bless you, bless you, bless you, praise you, Lord. We praise you. Lord, we give this telecast into your hand. Lord, you will keep the internet under the blood. Lord, you would take charge of the words that I will speak, that they will be your words, Father, that they will bring you honor, they will bring you glory, they will be of your praise, Father. And Lord, your word will draw us closer to you. Your word will inspire us, challenge us, and your word, Lord, will transform us and conform us into the image of your Son, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tera dhanyavad. Prabhu teri mahima. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Everybody said amen. Hallelujah. 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 Just shout hallelujah in the atmosphere around you. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं. The Lord has a very peculiar word, excuse me. Hallelujah. Very special, very powerful, very peculiar word for us. And I want you to turn to book of Judges. Judges की पुस्तक निकालिए, जिसे हम न्यायों की पुस्तक कहते हैं. जजेस की किताब को न्यायों की पुस्तक कहते हैं. जब इस्राएल आया और कनान देश में, जिस देश के अंदर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने 430 साल से भी पहले इनके पुरखे इब्राहिम से की थी, 4 पीढ़ी पहले प्रतिज्ञा की, 4 पीढ़ी बाद परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा की धरती को इस्राएल को दिया. और यहाँ पे लिखा है, जजेस शुरू होती है वर्स नंबर 1, न्यायों की पुस्तक 1:1. Now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? Joshua slept in the Lord, and they do not have one particular leader now. मूसा ने यहोशू को तैयार किया, लेकिन यहोशू जनरेशन ने आगे एक खास अगवा तैयार नहीं किया. तो इसलिए इस्राएली लोग पूछते हैं, कौन जाएगा कनानियों से लड़ने, क्योंकि वायदे की धरती में अभी भी दुश्मन हैं. और जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये हाइब्रिड हैं सारे दुश्मन. इनके अंदर सीड है, वॉचर्स का सीड है. दे आर हाइब्रिड, दे आर नॉट नेचुरल ह्यूमन बीइंग. Their DNA carries the strands of supernatural being that descended on Mount Hermon and Genesis chapter 6, who cohabited with women. उनका DNA अभी चल रहा है. Hallelujah. तो प्रभु क्या कहता है? Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into your hands. यहूदा हमेशा आगे है. आपको मालूम यहूदा क्यों आगे है? क्योंकि यहूदा के लॉइन में है यहूदा का बब्बर शेर, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया, हालेलुया. आपको मालूम, अगर आप आगे पढ़ेंगे, एक और लीडर बाकी है अभी, जिसका नाम है केलब या कालेब हिंदी में बोलते हैं. कालेब की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, कालेब भी कैनानाइट था, यहोवा को नहीं जानता था. लेकिन वो यहोवा की शरण में आया, उसने यहोवा को अपना जीवन दिया और इस्राएली लोगों के अंदर मिक्स हो गया. Caleb is not a Hebrew name. It's the name of a Canaanite deity.
लेकिन केलब प्रभु के चरण में आया। केलब चुना गया नॉट बिकॉज ऑफ द रेस बट बाय ग्रेस। हालेलुया। गॉड चूजेज यू नॉट बिकॉज ऑफ योर रेस, ही चूजेज यू बिकॉज ऑफ हिज सुपर नेचुरल, नेवर एंडिंग, एवर अबाइडिंग, अमेजिंग ग्रेस। और जैसे रहाब को भी चुना गया, वैसे कालेब को चुना गया। और वचन बताता है कि इन लोगों की, मैं आपको जल्दी से 2 चैप्टर में लेके जाना है, तो अगर आप इसका 5th वचन पढ़ेंगे, 4th पढ़ेंगे, जूडा वेंट अप। और किन किन से लड़ाई हुई? द कैनानाइट, द पेरिजाइट इनटू द हैंड, दे स्लू ऑफ देम इन बीजेक 10,000 मैन, 10,000 लोगों को मार दिया। और 5 वचन पढ़ेंगे, दे फाउंड एदोनाई बीजेक इन बीजेक एंड दे फॉट अगेंस्ट हिम एंड दे स्लू द कैनानाइट्स एंड द पेरिजाइट्स, बट एदोनाई बीजेक फ्लेड एंड दे परसूड आफ्टर हिम एंड कॉट हिम। 6ठा वचन पढ़ रहा हूं मैं, 6ठा वचन, जजेस, न्यायियों की पुस्तक के पहले अध्याय का 6ठा वचन। बट एदोनाई बिजेक फ्लेड एंड दे परसूड हिम एंड कॉट हिम एंड कट ऑफ हिज थम्स एंड हिज ग्रेट टोज। ये जायंट था, हाइब्रिड था, 6 टोज थे, हाथ के, पाँव के, उन्होंने उसके टोज काटे। और लिखा है, एंड एडोनाई बिजेक सेड, 70 kings having their thumbs and their great toes cut off gathered their meat under my table as I have done, so God hath requited me. And they brought him to Jerusalem and there he died. इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? 70 राजाओं के जो नफलीम थे, उनके टोज काटे थे। तो ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों का सिला दे दिया। वचन क्या बताता है? गलतियों की पत्री 6 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखता है, Whatsoever a man soweth, so shall he reap also. मसीह लोगों ध्यान से सुनिए, जो आप बीजोगे वो काटोगे। ये मत सोचिए कि यीशु मसीह का क्रूस ऑब्लिटरेट कर देगा। प्रेरित पौलुस गलतियों की पत्री लिख रहा है क्रूस के बाद, क्रूस से पहले लिखी गई नहीं है। लेकिन ये नियम है, वचन कहता है तेरे पाप तुझे ढूंढ लेंगे। जो तू बोएगा वो काटेगा। शरीर के लिए बो रहा है तो मृत्यु काटेगा, अगर आत्मा के लिए बो रहा है तो अनंत जीवन काटेगा। सोइंग एंड रीपिंग इज नेवर गोइंग टू एंड। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ झूठे प्रॉफिट, झूठे अपोस्टल सोइंग और रीपिंग को सिर्फ मनी तक ही सीमित कर देते हैं। सोइंग और रीपिंग का सिद्धांत बहुत गहरा है। पैसा तो एक एस्पेक्ट है उसका, वो सोइंग रीपिंग सिखाते हैं, लेकिन मनी, sow the money, get the money, sow the money, get the money. They teach people that there is a magical formula. You sow little amount and you're going to get 100-fold back and 1,000-fold back and 30-fold back and 60-fold back. It doesn't work like a magical formula. You are not playing lotto with God. You are not gambling with God. जो इंसान बोएगा, शरीर के लिए बोएगा, शरीर की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए बोएगा, आत्मा की कटनी काटेगा। तो वचन क्या बताता है? वचन बताता है, अगर पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ये 1st चैप्टर आप ध्यान से घर में पढ़िएगा। इज़राइल के जो 12 गोत्र हैं, उनमें से कुछ गोत्र यहूदा की लीडरशिप में गए। जो यहूदा की लीडरशिप में गए, ओनली दोज हु फॉलोड जूडा and they pursued according to the word of the Lord. They built their lives according to the principles that God laid out in His word, and they obeyed God precisely as God commanded them. They continued to gain victory. They continued overtaking their enemies, and they continued possessing the territories that God commanded them as their perpetual inheritance. But they who did not follow Judah, they failed utterly. All the 12 tribes of Israel, पढ़ के देखिएगा 1st chapter, they could never inherit the promise. Let me tell you, there is one thing to enter into the kingdom of God, there is another thing to inherit the kingdom of God. Many will only enter the kingdom, but there will be few who will inherit rewards. You been called to reap a glorious inheritance. Hallelujah. तो आप पहला अध्याय पढ़िए, पहला पूरा अध्याय बुक ऑफ जजेस का, तो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ओवर एंड ओवर अगेन, दे कुड नॉट
They could not push out the enemy. They could not gain total control over the territory. They could not inherit the land. God promised. God also gave them the capacity. God said, I will wage war against your enemies. But somewhere or the other, they screwed up. आपको मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया. उन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं बनाया. वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा नहीं लड़े, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि, अपने बल के द्वारा, और वो उन शत्रुओं को निकाल नहीं पाए. आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर. दे कुड नॉट ड्राइव आउट द एनिमी. और आपको एक और अद्भुत बात बताता हूं. जो जजेस के अंदर बैटल हो रही हैं, आप इसकी टोपोग्राफी देखें, ज्योग्राफी देखें. इसके अंदर इस एरिया में छोटे छोटे पहाड़ हैं और तराइयां हैं नीचे, जिसे वैली बोलते हैं. माउंटेन है और वैलीज हैं, माउंटेन है और वैलीज हैं. जहां जहां वैलीज हैं, वहां वहां जो इजरायली लोग हैं वो हार गए वैलीज में. आपको मालूम वैलीज में क्यों हार गए? माउंटेन के ऊपर जीते, वैलीज में हार गए. उनको वैलीज के अंदर, तराई के अंदर युद्ध करने का कौशल, युद्ध करने की रणनीति उनके पास नहीं थी. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, पहला अध्याय जजेस का, वर्ड्स नंबर 18. लेट मी रीड इट फॉर यू. ऑल्सो जूडा टुक गाजा and the coast thereof, and Ashkelon and the coast thereof, and Ekron with the coast thereof. These are all territories where the Nephilims lived. Hybrid generations lived here. These were supernaturally empowered human beings. 13 feet tall, 18 feet tall, giants थे यहाँ पे, humans नहीं थे, hybrid थे. यहाँ पे लिखा 19 वचन में, and the Lord was with Judah and he drove out the inhabitants of the mountains. The Lord was with Judah, but could not drive out the inhabitants of the valley because they had chariots of iron. In the valley is where the real war wages. मैं किसी समय आपको वैली का सीक्रेट सिखाऊंगा कलाम में से. राजा दाऊद कहता है, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. वैली जो है, तराई जो है, उसकी अनुभूति आपको लेना जरूरी है. जब तक आप वैली के अंदर युद्ध करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप वैली के अंदर स्पिरिचुअली इक्विप नहीं होंगे, स्पिरिचुअल आर्सेनल, स्पिरिचुअल आर्मरी को यूज करना आपको तराई के अंदर नहीं आएगा, आप कभी भी माउंटेन को एंजॉय नहीं करेंगे. बहुत सारे मसीह लोग वैली से भागते हैं क्योंकि ये वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ है. इट इज नॉट वैली ऑफ डेथ, इट इज द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ. आप शैडो से डरते हो. बहुत सारे लोग क्रूस नहीं उठाना चाहते, बहुत सारे लोग सेल्फ डिनायल का जीवन नहीं जीना चाहते, बहुत सारे लोग सकरे मार्ग से नहीं घुसना चाहते, क्योंकि प्रचारक उनको जो सुसमाचार पेश कर रहे हैं वो सुसमाचार है प्रॉस्पेरिटी का. यीशु मसीह के पीछे आओ, आपको बंगलाज मिलेंगे, वीज़ाज लग जाएंगे आपको रियल एस्टेट मिल जाएगी, आपको बड़े बड़े बिजनेसेस मिलेंगे, आप ऑडी लें, मर्सिडीज़ लें. इस तरह का सुसमाचार प्रीच किया जा रहा है. हमारे पंजाब में तो ऐसा किया झूठे नबियों ने. और 2019 के अंत में, दिसंबर में, 2019 की दिसंबर में भविष्यवाणी की कि 2020 सुपर अबंडेंस का साल होगा, 2020 ब्रेक थ्रू का साल होगा, 2020 प्रॉमिसेस को रियलाइज करने का साल होगा, 2020 वो क्रॉसिंग ओवर होगा, 2020 में बम्पर ब्लेसिंग. ऐसे झूठे नबी बोल रहे थे शैतानी आत्माओं के द्वारा. देखिए, मुझे यहोवा ने बोला, मैंने 2019 में देखा एक डार्कनेस आ रही है, एक बादल, काला बादल पृथ्वी के ऊपर उतरा. उसे लोगों ने हटाने की कोशिश की, वो हटा नहीं. मैंने बताया कि एक विपत्ति आ रही है, एक बहुत बड़ा संकट पृथ्वी के ऊपर उतर रहा है, क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु के संग नहीं चल रहे. नबी झूठे हैं, प्रेरित झूठे हैं, इसलिए यहोवा किसी को बता नहीं रहा. आमोस 3:7 में प्रभु का वादा है कि पृथ्वी पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पहले अपने नबियों को बताऊंगा. तो क्यों नहीं बताया उसने? God did not find himself obligated to tell this because all the prophets are false voices. They are uttering their vanity.
प्रभु कहता है मैंने इनसे कहा ही नहीं, अपने आप से बोलते जा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु कहता है ये पैसे के लिए, धन के लोभ के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है ये मेरे एमिसरीज नहीं है, मेरी वॉइसेस नहीं है, ये अंधकार की बातें कर रहे हैं। प्रभु कहता है मेरी प्रजा पे तलवार लटक रही है और ये मेरी प्रजा से कहते हैं जा, शांति होगी, तसल्ली होगी, आराम होगा, यहोवा तुझे आशीष देगा। प्रभु कहता है तलवार तो मेरी प्रजा पे गिरेगी, पर मेरी तलवार जो घात करेगी उसके लहू का बदला इन झूठे नबियों से लूंगा मैं। देख लीजिए उनकी वॉल, देखिए फेसबुक पे जाके 2019 दिसंबर की, क्या क्या उन्होंने झूठी भविष्यवाणी की थी। अटरली बकवास है वो, क्योंकि यहोवा से कनेक्टेड नहीं थे वो। उनको नहीं मालूम था कि पृथ्वी पे कौन सा समय आ रहा है। और फिर जब आया तो कोरोना को कोई जूतियां मार रहा था, कोई कह रहा था कोरोना, मेरे को प्रभु ने बोला इट्स नॉट गोना गो, इट इज गोइंग टू असिमिलेट इन द अर्थ लाइक अदर वायरसेस, दिस इज गोइंग टू स्टे। एंड गॉड शोड मी, आप मेरी फेसबुक पे देखें, प्रभु ने बताया, मैंने हिब्रू में से देखा कोरोना क्या चीज़ है और मैंने डाला अपनी फेसबुक पे, लेकिन मैंने उसको पब्लिसिटी करके मर्चेंडाइज नहीं किया, उसकी मार्केटिंग नहीं की कि लोगों से पैसा लिया जाए। बिल्कुल क्वाइटली मैंने बताया फ्रॉम ग्रीक, फॉर हिब्रू टेक्स्ट में से कोरोना बाइबल के अंदर है, हिब्रू में 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। प्रभु ने मुझे बोला, बताया ये क्या करता है, उसकी रेमेडी क्या है। मेरी फेसबुक पे देख लीजिएगा, बिना किसी ड्रामेबाजी के, बिना किसी हाइप क्रिएट करने के, बिना किसी मार्केटिंग एजेंडा के, प्रभु ने बोला सेंत मेंत में लोगों को बता, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे। हालेलुया। इज़राइल की स्पिरिचुअल लाइफ देखें अब आप। रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर समझते हैं आप? कभी ऐसे जाता है रोलर कोस्टर, कभी यूं नीचे आ जाता है। जब ऊपर जाता है तो यूं पहाड़ है, जब नीचे आता है तो तराई है। जब ऊपर जाता है पहाड़। ये है इज़राइल की हिस्ट्री। रिवाइवल आया, बेदारी आई, फिर पाप में गिर गए, प्रभु से दूर हुए, फिर कोई जज उठा, न्यायी उठा, फिर रिवाइवल, बाद थोड़े समय बाद पाप में गिर गए। ऐसा था जीवन बनी इस्राएल का, क्योंकि वो तराई के अंदर युद्ध करना नहीं सीखते थे। तराई की शिक्षा नहीं है, शिक्षा है पहाड़ की। चमत्कार होंगे, मिरकल होंगे, मौजे होंगे। वचन में क्या लिखा है? 11 अध्याय पढ़िएगा ध्यान से, इब्रानियों की पत्री। वहाँ पे लिखा है शूरवीरों के विषय में, जिन्होंने शेरों के मुंह खोल दिए, जो मुर्दों में से जी उठे, जिन्होंने अद्भुत चमत्कार किए, अद्भुत मिरेकल्स किए जिन्होंने। और उसके साथ वहाँ पे क्या लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। आई जस्ट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई रीड फॉर यू। इब्रानियों की पत्री, हालांकि ये मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन मैं ये वचन आपको देना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय निकालें जल्दी से, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 11 अध्याय के अगर शुरू से आप पढ़ेंगे, इसके अंदर सभी विश्वास के योद्धे हैं, जिन्होंने विश्वास के द्वारा, जिनको किंगडम मिली, बादशाहियाँ मिली, जो शेरों के मुंह में से बच निकले, जो मृत्यु के ऊपर गालिब हुए, लाल समुंदर फट गए, स्वर्ग से जिनके लिए मन्ना। मैं कुछ वचन पढ़ देता हूँ, देखिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 30 वचन। बाय फेथ द वॉल्स ऑफ जेरिको। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी की बाइबल नहीं है, पंजाबी में पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। इब्रानियों 11, हालेलुया। इब्रानियों 11 मैं 30 से पढ़ रहा हूँ, पंजाबी की बाइबल है। यहाँ लिखा है, नेचा नाल यरीहो दी सफीला 7 दिनों तक घेरी गईयां ते ढह पईयां। यरीहो की दीवारें गिर गई विश्वास से। नेचा नाल रहाब वेशवा बेप्रतीतियां दे संग नाश ना हुई, क्यों जो उन्हें खोजियां ने सुख सांद नाल अपने घर उतारिया। रेहब जो वेश्या थी वो बचाई गई इस विश्वास के द्वारा। फिर लिखता है, हुण मैं होर की आखा, अब मैं और क्या कहूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं। भाई गिदाउन की, गिडियन की, बराक की, समसून की, यिफ्ता की, दाऊद की, सैमुएल की, या नबियों की बातें बताऊं, जिनके संग बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह, निशान, मौजे हुए। लिखा है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा बादशाहियों को फतेह किया और धार्मिकता के काम किए, परमेश्वर के वायदों को प्राप्त किया, बब्बर शेरों के मुंह बंद किए, आग को ठंडा कर दिया, आग की भट्टियों को, आग में से बच निकले, तलवार की धारा से बच निकले। वो निर्बलताई में बली हुए, युद्ध में सूर में बने,
और लिखा है शत्रु ओपरियां दी फौजां नूं भजा दिता। ये डिमोनिक एंटिटीज थी जो उन फौजों को, हाइब्रिड फौजों को भगा दिया। और लिखा है औरतों ने अपने पतियों को मुर्दों में से जिंदा हुआ पाया। और लिखा है कई को डांगा नाल जानों मारेगी। अब देखिए यहाँ पे गियर चेंज होता है। औरतों ने मुर्दों में से पतियों को जिंदा पाया, उसके साथ ही गियर चेंज हो गया। लेकिन कई मारे गए, डांगा नाल जानों मारे गए, छुटकारा ना मन्निया ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਕਈ ਕੁ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਤਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਰਤਾਏ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਬਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਲੜੀਆਂ ਪਹਿਨੇ मारे मारे फिरते रहे। यहाँ पे पहले लिखा है चमत्कार जिनके द्वारा हुए, आग की भट्टी में से जी निकले, शेर के मुंह बंद कर दिए गए, लाल समुद्र फाड़ दिए गए, उन्होंने शत्रु की सेनाओं को हरा दिया, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे। और वचन में लिखा है स्वर्ग से फरिश्ते, ये सब बातें लिखी। फिर बाद में उन लोगों के विषय में भी लिखा है जिनको पत्थर मार मार के मार दिया गया, जो परताए गए, अजमाए गए, तलवारों के साथ काट दिए गए, जो कंगाल हुए, दुखी हुए, भूखे घूमते रहे, जो मारे मारे घूमते रहे, जानवरों की खालें पहन के घूमते रहे, उनको यहोवा ने चमत्कार नहीं दिया, उनके संग मौजे नहीं हुए, वो मर गए, घायल। आपको मालूम कितना 2000 से लेके सन 2003 से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सन 2003 से 2019 तक 16 सालों में आपको मालूम इराक में 2 मिलियन मसीहों को मार दिया गया। 2 मिलियन 20 लाख, वहाँ पे 2.5 मिलियन 25 लाख मसीही बंदे थे। इस समय 1 लाख के करीब हैं। आपको मालूम सूडान में कितना क्रिश्चियन मार दिया गया, मिलियंस। इजिप्ट में कितना मर गया, हज़ारों की तादाद में। अफ्रीकन के अलग अलग कंट्रीज़ में, नाइजीरिया में और कई कंट्रीज़ में कितने मारे गए मालूम आपको। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कई और देशों के अंदर कितने मसीह लोग घात हुए। जब वो मारे गए, घात किए गए, तब भी परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। जब परमेश्वर बचा लेता है, चमत्कार करता है, तब भी महिमा प्रकट होती है। जब परमेश्वर सताओं में जाने देता है, तब भी महिमा प्रकट हो। ये प्रचार गलत किया इन्होंने कि सिर्फ अगर सामर्थ प्रकट होती है, ग्लोरियस रेस्क्यू होता है, तभी परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती। अरे भाई, कलीसिया की बुनियाद तो मसीहों के लहू के ऊपर रखी गई है। आपको मालूम पहली सदी में, दूसरी सदी में लाखों मसीह लोग मारे गए, भूखे शेरों के आगे डाल दिए गए। नीरो मसीहों को बांध के जलाता था और पार्क में बैठता था, पार्क में रोशनी नहीं जलती थी, मसीहों के ऊपर तेल डाल के जलाया जाता था। मसीहों के जलते बदन की रोशनी में ऑर्जीज करता था नीरो, गोश्त खाता था और औरतें नाचती थी उसके आगे आके। इसीलिए पतरस लिखता है, जो विपत्तियों का लांबू पंजाबी में लिखा है, द फायर दैट यू आर गोइंग थ्रू, द फायरी फर्नेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, अग्नि की ज्वाला जो तुम्हें लगी है, वो कोई नई बात नहीं है। पतरस लिखता है उस कलीसिया को, ये पथ दुखों का है। तराई के अंदर जाने की शिक्षा नहीं दी गई। तराई का प्रचार नहीं करते पादरी, क्योंकि तराई का प्रचार करने से उन्हें लाभ कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप? उनको लाभ है बढ़िया बढ़िया प्रोफेसी देंगे, तेरा वीज़ा लगेगा, तेरे को रियल एस्टेट मिलेगी, तेरे को 2 नई गाड़ियाँ मिलेंगी, तेरे को बंगले मिलेंगे। ये करते हैं प्रचार। ये छिनाले वाले नबी हैं, झूठे। बचिए, अपना जीवन बचाइए। ये मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए। मसीह के पीछे, मसीह की महिमा, मसीह का जलाल, मसीह का जीवित कलाम, परमेश्वर के राज्य के पीछे भागिए। प्रभु कहता है ये सब चीज़ें तुझे अपने आप मिलेंगी अगर तू मेरा खोजी हो। तो इस्राएल ने तराई में जाना पसंद नहीं किया, तराई में हमेशा हारते रहे। और इसलिए क्या हुआ, वो मुकम्मल तौर पे कभी भी जयवंत नहीं हो पाए। राजा दाऊद कहता, चाहे मैं मौत की तराई की वादी में से हो, तराई के अंदर आपको एंडोरिंग विक्ट्री मिलती है। वो विजय आपको तराई में मिलती है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको मालूम, दान का कबीला भाग गया, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। दान का कबीला सीरिया लेबनान की तरह पहाड़ पे जाके बस गया। उसने इसराइलियों के संग किसी लड़ाई में सहायता नहीं की। इसलिए दान का गोत्र पढ़ के देखें आप। जब यहोवा परमेश्वर
प्रकाशित वाक्य में 13-14 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पे परमेश्वर मोहरें लगाता अपने लोगों को, इसराइलियों को। इसराइल के 12 गोत्रों को मोहर लगती है, लेकिन दान के कबीले को मोहर नहीं लगाई गई। स्वर्ग के अंदर दान का कबीला नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के संग नहीं चले। तो आज जो मैं आपको एक खसूसी वचन देना चाह रहा हूँ, तो इज़राइल जो था, क्या लिखा यहाँ पे, इज़राइल अपने शत्रुओं के ऊपर कभी विजय नहीं पा सका, अपनी मिरास हासिल नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि तराई में नहीं गया। तराई की शिक्षा मिली नहीं, क्रूस उठाने की शिक्षा, अपने आप का इनकार करने की शिक्षा, शरीर के कामों का विनाश करने की शिक्षा, पवित्रताई के मार्ग पे चलने की शिक्षा, यहोवा के तंग मार्ग पे चलने की शिक्षा नहीं दी गई, प्रॉस्पेरिटी की दी गई। बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल होगा आपका, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, वही लोगों को बताएगा कि आप प्रभु के बंदे हो। ये मापदंड रखा इन झूठे नबियों ने, इस चीज से नापा यहोवा की हजूरी को कि जितनी प्रॉस्पेरिटी होगी, जितना बढ़िया घर, महंगी गाड़ियां, हैवी बैंक बैलेंस, महंगे कपड़े पहनोगे, तो उतना ही ज़्यादा लोग जानेंगे कि तुम यहोवा के बंदे हो। फॉल्स गॉस्पल, झूठा सुसमाचार। ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री में लाजर जैसे बंदे को तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो सोफे जो आगे लगाते हैं ना, उसको 10-10 हज़ार का बेचते हैं सीट को। लोगों को कहते हैं मैं हाथ रख के दुआ करूंगा, 10,000 रुपया लगेगा। स्पेशल अकेले में मिलना है, 50,000 रुपया लगेगा। डायमंड पार्टनर बनना 2.5 लाख रुपया दो, गोल्डन बनना है 1.5 लाख रुपया दो। ये ठग हैं जो लूट रहे हैं लोगों को, समझ रहे हैं आप? लूट रहे हैं लोगों को, ठग रहे हैं और पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, और इनका पतन आ रहा है। ये कलाम पढ़ो, सच्चा कलाम, सच्चे कलाम के संग जुड़िए, वरना आप रह जाएंगे जब कलीसिया उठाई जाएगी। हालेलुया। सच्चे वचन के संग जुड़िए, सच्चे प्रभु के दासों के संग संगति कीजिए। हालेलुया। तो देखिए अब क्या हुआ, मैं पढ़ता हूं इसका पहले अध्याय का 35 वचन। बट द एमोराइट वुड ड्वेल इन माउंट हीरेज इन एजलोन एंड शालबीम, yet the hand of the house of Joseph prevailed so that they became tributaries. यूसुफ धर्मी है। जूडा युद्ध करने जाता है तराई में जाता है जूडा, यहोवा ने आशीष दी। And the coast of the Amorites was from the beginning of Ikrabim, from the rock and upward. अब मैं आपको जो खास जगह लेकर आना चाहता हूँ, हालेलुया। दूसरे अध्याय में आ जाइए, इसके दूसरे अध्याय में और पहले वचन से पढ़िए। And the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I made you to go up out of Egypt, and I have brought you unto this land which I swear unto your father, and I said, I will never break my covenant with you. तो क्या हुआ कि एक जलाली दूत आया है। There is an awesome angel that appears, and the angel is coming from where? From Gilgal. And you know what Gilgal is? Gilgal is a place where they had circumcision. गिलगाल वो जगह है जहाँ शरीर का खतना किया गया। गिलगाल वो जगह है जहाँ पे शरीर की ख्वाहिशों को, शरीर की गंदी अभिलाषाओं को काट दिया जाता है। और वहाँ से एंजल कहाँ आ रहा है? बोकिम में आ रहा है। और ये एंजल आम एंजल नहीं है, इसे जूस कहते हैं मेटाट्रॉन। ये एंजल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, ये जलाली दूत है। और ये एंजल क्या कहता है? एंजल उनसे कहता है, आई मेड यू टू गो अप आउट ऑफ इजिप्ट। मैं तुम्हें मिस्र में से छुड़ा के लाया हूं। दूत छुड़ा के नहीं लाया इजराइल को मिस्र में से, यहोवा छुड़ा के लाया। ये एंजल दूसरा यहोवा है। बाइबल में 2 यहोवा हैं, एक यहोवा पिता है, दूसरा यहोवा पुत्र है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों एक हैं फिर भी। हालेलुया। पढ़िए कलाम को गहराई से। दोनों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सेपरेट है, फिर भी वो वन है। हिब्रू वर्ड है अखाड, वननेस के लिए वर्ड है अखाड। 2 वर्ड है वननेस के लिए, लेकिन जो परमेश्वर और यीशु मसीह की वननेस के लिए हिब्रू वर्ड है, वो वर्ड है अखाड। अखाड का मतलब 2 यूनिट्स हैं बट 1 है। यही वर्ड परमेश्वर यूज करता है पति और पत्नी के रिलेशनशिप में। प्रभु कहता है वो 2 तन होंगे लेकिन एक होंगे। वर्ड है हिब्रू अखाड।
जैसे हस्बैंड इज अ सेपरेट इंडिविजुअल एंड वाइफ इज अ सेपरेट इंडिविजुअल, मैन एंड अ वुमन आर टू डिफरेंट एंटिटीज येट वन। वर्ड है अखाड, वही परमेश्वर के लिए यूज किया गया वर्ड। ये एंजल स्वयं प्रभु यीशु मसीह, ये थियोफनी है। मरियम की कोख में दे लेने से पहले भी यीशु मसीह है। वो अविनाशी है, विराट है, अजन्मा है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अलफ और ताब है। हालेलुया। वो सृष्टि का, ब्रह्मांड का मूल है। वो सब कुछ रचता है, सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ से थाम के रखता है। वो विराट परमेश्वर की, अदृश्य परमेश्वर की पूरा पूरा प्रतिबिंब और उसकी परछाई है, और उसके दाहिने हाथ बैठा पूरे ब्रह्मांड को थाम के रखता है। हालेलुया। वो अनक्रिएटेड सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड है। वो एंजल के रूप में आ रहा है और क्या कह रहा है? आई मेड यू गो अप आउट ऑफ इजिप्ट, मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा के लाया। एंड आई हैव ब्रॉट यू अनटू द लैंड विच आई स्वेयर अनटू योर फादर्स, मैं तुम्हें लेकर आया इस जगह और ये देश मैंने तुम्हारे पुरखे इब्राहिम से वादा किया देने का। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के आखिरी वचन पढ़िएगा। वहां पे यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिन को देखना, और उसने मुझे देखा। तो यहूदी सोचते हैं कि अपने ही इज आउट ऑफ माइंड। वो से कहते हैं, यू आर नॉट इवन 50 ईयर्स ओल्ड एंड इट हैज बीन 2000 ईयर्स सिंस अ फादर इब्राहिम डाइड, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे पुरखे इब्राहिम को मरे को तो 2000 साल हो गए। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। क्या कहते हैं? इब्राहिम वॉज आई एम। आपको मालूम आई एम के लिए कौन सा वर्ड है? आग की बलती झाड़ी में से यहोवा जवाब देता है मूसा को, हाइया अशर हाइया, मैं जो हूं सो हूं। उसका नाम है योड हे वाव हे, आई एम दैट आई एम। यीशु मसीह वही शब्द बोल रहा है, हाया अशर हाया। आपको मालूम जब यीशु मसीह ये शब्द बोलता है तब यहूदी लोगों के अंदर, वो धर्म के ठेकेदारों के अंदर बदरू जागती थी। वो उसे मारना चाहते थे। 2 बार उसने ये शब्द बोला, 2 बार वो उसे मारना चाहते थे। एक बार पत्थर से, दूसरी बार पहाड़ी से नीचे गिराना चाहते थे। लेकिन क्या लिखा है? दोनों बार यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जलाली स्वरूप में आ गया। जब उसने बोला हाइया शराइया, वो बन गया जो वो है, विराट सृष्टि का रचिता। और वचन में लिखा उनके बीच में से निकल गया। दे कुडंट डेयर टच हिम, क्योंकि वो जलाली है। उस जलाली यीशु ने इंसानी देह में अपने आप को लिमिट किया था अपनी मर्जी से, ताकि इंसानी देह में मौत का सर कुचले। हालेलुया। और ये एंजल क्या कहता है? कहता है, मैंने तुम्हारे पुरखे अब्राहम से शपथ खाई। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 2 वचन, वहां पे स्टीफनस, उसको भी पत्थर मार मार के मार देते हैं जब यीशु मसीह के इस जलाली रूप की चर्चा करता है और उनके पाप उजागर करता है बनी इस्राएल के। आपको मालूम जब ये प्रचार होता है ना, कड़वा क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि ये सच्चा है। ये सच्चा है, यहोवा का सच्चा कलाम है और लोगों के पापों को उजागर करता है अपने आप। अगर कोई लोग अंधेरे में बैठे हैं ना, उन्होंने कपड़े उतारे हैं, नंगे हैं, अगर कोई टॉर्च मारेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो रोशनी उनके नंगेपन को उजागर करती है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं? क्या क्या लिखा वहां पे? प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में वहां पे लिखा है, बिफोर अ फादर एब्राहम ड्वेल्ट इन मेसोपोटामिया, गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर्ड अनटू हिम। जब हमारा पुरखा मेसोपोटामिया में रहता था, जलाली परमेश्वर ने उसे अपना दर्शन दिया। यीशु मसीह कहते हैं, उसने मेरा दर्शन पाया। मरियम की कोख में शरीर धारण करने से पहले भी मैं हूँ। मैं अनादि हूँ, अजन्मा हूँ, सृष्टि का रचता हूँ। ब्रह्मांड मैंने रचा, मेरी बुद्धि ने ब्रह्मांड की नींव धरी। मैंने इस सृष्टि को बनाया, रचा, ये मेरे लिए रची गई है। ये सृष्टि का वजूद मेरे में कायम रहता है। मेरे मुंह के शब्द इन ब्रह्मांडों को खरबों गुना खरबों गैलेक्सीज को थाम के रखते हैं। वैज्ञानिक उसे ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन वो मेरे कलाम की कुव्वत है। हालेलुया। तो क्या कहता है ये प्रभु यीशु मसीह जब आता है यहाँ पे? आई सेड आई विल नेवर ब्रेक माई कवनेंट विद यू। ये जो वाचा है, ये परमेश्वर ने अपनी ज़ात की कुव्वत से बांधी है, मेरी ज़ात की कुव्वत से नहीं बांधी गई।
कई लोग गीत गाते हैं ना जी, पल्ला ਉਹਦਾ फड़िया तो पार लंघ जावांगे, भी जे तू ਉਹਦਾ पल्ला फड़िया तो तू छड्ड भी देगा। कलाम ये नहीं कहता कि हमने उसका पल्ला पकड़ा है, कलाम कहता है हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। कलाम कहता है उसने अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे थामा है। मैंने नहीं पकड़ा यीशु का हाथ, यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर मैंने पकड़ा होता तो मैं छोड़ देता। जब शरीर की अभिलाषा जगती, जब दौलत सोने चांदी की खनक सुनाई देती, जब संसार की चमकदार चीज़ें दिखाई देती, मैं उसका हाथ छोड़ता। मनुष्य की क्या जात है कि मनुष्य घमंड करके कहे हमने तुझे पकड़ा, हम नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से पतरस को छट्टा गया छज्ज में डाल के, क्योंकि घमंड था। उसने कहा दुनिया छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नहीं बोला, इंसानी गुरूर और घमंड के द्वारा बोला। सुना ना आपने कईयों का गुरूर और घमंड, बोलते थे पंजाब की सारी चर्चेस खाली कर देंगे हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी चर्च एशिया में से सबसे बड़ी है। ये आत्मा नहीं बोलता है मेरे पास पावर है, पुलिस की पावर है, सारी पावर है। ये आत्मा नहीं बोलता, ये कोई और आत्मा बोलता है। हालेलुया। परखिए आत्माओं को भाई और बहनों, इतने भक्त मत बनिए, अंधभक्त। मेरी लॉयल्टी मेरे प्रभु के प्रति है, किसी मनुष्य के प्रति नहीं है। मैं वफादार हूं अपने प्रभु का। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, मैंने मेरी जात के कारण मैंने वाचा नहीं तोड़ी, मैं हूं जो वाचा को थाम के रखता हूं। तुम तो सैकड़ों बार तोड़ते हो। तो क्या कहता है प्रभु, एंड ई शैल मेक नो लीग विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड। तुम जिस धरती पे रह रहे हो, इस धरती के लोगों के साथ तुम कोई भी वाचा मत बांधना। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु, वाचा मत बांधना। आपको मालूम पंजाब में कलीसिया ने कितनों के संग वाचा बांधी है? मंत्रियों के साथ, सियासी नेताओं के साथ वाचा बांधी है। सब दुनिया के लोगों के साथ पादरी वाचा बांध के रखते हैं, क्योंकि प्रभु के संग वाचा नहीं है। प्रभु की विधियों और मार्गों को नहीं जानते। प्रभु कहता है किसी के संग वाचा नहीं बांधनी। आपको मालूम ये कौन ये वचन कह रहा है? एंड ई शैल मेक नो लीग विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड, ई शैल थ्रो डाउन देयर ऑल्टर्स, बट ई हैव नॉट ओबेड माई वॉइस, वाई हैव ही डन दिस। पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए 2 अध्याय न्यायियों की पुस्तक। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सुनिए ध्यान से, पंजाबी में पढ़ता हूँ। न्यायियों की पुस्तक, हालेलुया। जजेस, न्यायियों की पुस्तक का 2 अध्याय जल्दी से निकालें, वचन पढ़ें मेरे संग संग। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक 2 अध्याय। देखिए ये यीशु मसीह बोल रहा है एंजल के स्वरूप में। क्या कहता है? सो तुसी इस देश के वासियों नाल नेम ना बनो, सगों तुसी उन्हां दी जगवेदियां नूं ढा सिटो, पर तुसां मेरी आग्या ना मन्नी, तुसां एक कानू कीता। बहुत सारे पास्टरों ने ऑल्टर बनाई हैं अन्य जाति के लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ, सियासतदानों के साथ, क्योंकि उनकी ग्रांट से चर्च की छत डालनी है, उनके दिए गए पैसे से कलीसिया के बर्तन खरीद के लाने हैं। जब इलेक्शन आएगा तो वो पास्टर कम और पॉलिटिकल कैंपेनर ज़्यादा दिखते हैं। परमेश्वर की कलीसिया को पलीत किया कई पादरियों ने। कलीसिया का संगठन दिखा के मंत्रियों को बुला के इलेक्शन के दौरान उनसे मोटी रकमें ली हैं अंदर कमरे के घुस के। यहोवा तुम्हारे विरोध में है, सुन लो मेरी बात। उसका दंड आ रहा है, तुमने वाचा बांधी इनके साथ। चाहिए तो ये था कि तुम उन्हें परमेश्वर की ज्योति दिखाते, वो तुम्हारे पास आते, तुम उनके लिए प्रार्थना करते, यीशु मसीह का वचन बताते कि सच्चाई से न्याय करना, पवित्रताई के मार्ग पे चलना, विधवा का, अनाथों का, दुखियों का, परदेशियों का न्याय चुकाना, अधर्म का तराजू से मत तोलना। ये विधियां तुम उन्हें सिखाते, वरन तुम तो उनसे पैसा ले रहे हो, वाचा बांध रहे हो उनके साथ। प्रभु ने कहा उनके साथ तुमने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम ये कौन है एंजल? एक वचन पढ़ें और इसी में से न्यायियों की पुस्तक निकालें। न्यायियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कौन है जो ये बातें कर रहा है, जो स्वयं यहोवा है, यहोवा पुत्र है, यहोवा पिता का यहोवा पुत्र है। 13 अध्याय न्यायियों की पुस्तक निकाल लें, उसका 11 वचन पढ़ें। मैं स्टोरी बता देता हूँ पहले आपको। एक स्त्री है,
वो खेत में काम कर रही है, शायद घास काट रही है, तो यही एंजल उसके पास जाता है जो यीशु मसीह है, प्री इनकारनेट जीसस है। उस औरत को कहता है, वो बहुत प्यारी औरत है, प्रभु से प्यार करती है, तेरे एक पुत्र जनेगा, उसके सर पे उस तरह नहीं चलेगा, वो कोई नशीले पदार्थ नहीं खाएगा, यहोवा उसके अंग संग होगा, यहोवा इसराइल को उसके द्वारा छुटकारा देगा, देख यहोवा का हाथ तेरे ऊपर है, तू भी कोई मदिरा वाली चीज़ का पान मत करना। तो वचन में लिखा है, वो अपने पति को बताती है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति पुरुष आया था, ही लुक्ड लाइक ए मैन बट अ ग्लोरियस मैन। तो उसका पति कहता, जब वो दोबारा आएगा तो मुझे बुला लेना। अब सुनिए आगे 13 का 11 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, 13 का 12 से पढ़, 13 का मैं 11, 13 का 10 से पढ़ रहा हूँ। सो उस तीमी ने 10 से भी छोड़ो, 9 से पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने मनोहा की आवाज़ सुनी ਅਤੇ परमेश्वर का दूत उस तीमी ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਇਆ, पर उस वेले उसका पति मनोहा उसके कोल नहीं सी। फिर आ गया एंजल उस औरत के पास खेत में। सो तीमी ने छेती नाल भज के अपने पति ਨੂੰ जा दस्सिया ਅਤੇ ਉਹਨੇ आख्या, वेख ਉਹ मनुख जो उस दिन मेरे कोल आया सी हुण मैनू फिर दिस पिया, वो फिर आ गया है। तो लिखा है अगला वचन में 11 वचन में, तब मनोहा उठ के अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उस मनुष्य के पास आया और उसे कहने लगा, क्या तू वही मनुष्य है जिसने इस औरत के साथ बातें की? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ। ही अगेन सेड आई एम। हालेलुया। क्या बोला उसने? ही अगेन सेड। यहाँ पे जो हिब्रू टेक्स्ट है वो बड़ा स्ट्रेंज है। ही सेड, आर यू दी वन? ही सेड, यस आई एम। हिब्रू में उसने फिर बोला आई एम। आपको मालूम, नए नियम में यीशु मसीह आई एम बोलता है। यीशु मसीह कभी भी आई वॉज नहीं है, यीशु मसीह हमेशा आई एम है। ध्यान से सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बड़ा डीप रहस्य बता रहा हूं। जीसस क्राइस्ट इज नेवर आई वॉज, Jesus Christ is always I am. He says, I am the way, the truth and life. I am the bread that came from heaven that gives eternal life. He says, I am the light of the world. He says, I am the good shepherd that lay down my life for my sheep. He says, I am, I am, I am, I am the way, the truth and the life. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. I am the bright and the morning star. He says, I am the door. He says, I am the good shepherd. He says, I am the door that leads unto everlasting life. He is the I am. Jesus is never I was. He is always I am. In 2020, he is I am. In 2000, if he doesn't show up for another 100 years, in 11, in 20, in 2120 also he will be I am. He's always I am. He is everlasting, eternal, most high God. He lives beyond time. The time casts no shadow upon him because he is the eternal, ageless God, the creator of the universe. तो नए नियम में जब यीशु मसीह बोलता I am, वो ग्रीक ट्रांसलेटर क्या लिखते हैं उसको, ग्रीक राइटर, ग्रीक वर्ड है एग्यो आमी। बोले मेरे साथ, एग्यो आमी, एग्यो आमी आई एम, एग्यो आमी आई एम। हिब्रू वर्ड है हाइया अशर, हाइया, हाइया अशर, हाइया। हमारा प्रभु है हाइया अशर, हाइया हमारा प्रभु है। ईगो एम ए आए, ईगो एम ए आए, ईगो एम ए आए कहने का हक किसी और को नहीं है। अगर कोई कहता ना मैं हूं नबी, मैं हूं फलाना, मैं हूं पापा, मैं हूं ढिमकाना, मेरी भविष्यवाणियां, मेरी, समझ लीजिए उसके अंदर बकरा बोल रहा है, वो भेड़ नहीं है। एक ही है जो मैं है, वो मैं है यीशु मसीह। उसको छोड़ के कोई और मैं नहीं है। एक और ने मैं बनना चाहा, पढ़िएगा आप 14 अध्याय यशाया की पुस्तक। एक और था जिसने मैं बनना चाहा, उसको भी यीशु मसीह ने बनाया था, बहुत खूबसूरत बनाया था, उसके अंदर साज बनाए थे। वो यहोवा के लिए गाता था, यीशु मसीह की स्तुति करता था। वो परमेश्वर के अग्निमयी पहाड़ के ऊपर था, वो जीवते पत्थरों के बीच में चलता फिरता था। उसे बहुत सुंदरता दी थी, उसे परमेश्वर ने परफेक्ट करके बनाया था। उसकी 9 स्किन थी, 9 स्किन, कीमती पत्थरों की 9 स्किन मिली थी उसको। हमें तो ये कमज़ोर स्किन मिली है ना, ये मांस की जो बड़ी फ्रेजल है, उसे 9 स्किन थी कीमती स्टोन्स की, और 10th टॉपिंग थी उसके ऊपर सोने की।
उसको घमंड हुआ, उसने सोचा मैं भी एगो आमी है, मैं भी एगो आमी हूं, शायद मैं भी हाइया अशर हाइया हूं। उसने भी मैं बोला, मैं अपना सिंहासन यहोवा के सिंहासन के ऊपर लगाऊंगा, मैं उत्तर की दिशा की ओर चला जाऊंगा, मैं तारों के ऊपर चला जाऊंगा, मैं 5 बार उसने मैं बोला। और वचन में लिखा उसे गिरा दिया गया। मैं का स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। ये जो पादरी बोलते हैं ना अपने आप को अपोस्टल पापा डैडी बोलते हैं बहुत, मैं इनके अंदर है। यहोवा का रूह नहीं बोल रहा, ये कोई और रूह बोल रहा है। आप अपने आप को दूसरों से विलक्षण दिखाना चाहते हो कि मैं अलग हूँ, मेरी प्रार्थनाओं के तस्वीर अलग है, मुझे हक है पापा कहलवाने का वाक्यों को नहीं है, मैं तो अलग रेलम में घूमता हूँ, मेरे ऊपर अलग मसा है। ये जो आपकी कोशिश है ना अपने आप को विलक्षण पेश करने की, यही बता रही है कि आपके अंदर एगो एमी की ईगो है। एगो एमी से ही ईगो वर्ड निकलता है। यीशु मसीह कहते हैं एगो एमी, तो वो पत्थर मारना चाहते हैं उसको, क्योंकि ईगो एमी बंदों को पसंद नहीं है। जो असली ईगो एमी बोल रहा है उसको भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको मालूम, सुनिए अब ध्यान से, मैं आपको बहुत अद्भुत प्रकाश वचन का देने जा रहा हूं। न्यायियों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस, चैप्टर नंबर 13। हालेलुया। आइए सुनिए वहां पे क्या लिखा है। बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 13। बड़े ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, मार्क कीजिए सच्चे कलाम को। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर से इंग्लिश में पढ़ता हूँ 11 वचन से, 12 से पढ़ता हूँ। अब देखिए, एंड मनोहा, ये मनोहा व्यक्ति का नाम है, इसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा गया। मनोहा फैमिली की बात करते हैं। मनोहा सेड, नाउ लेट दाई वर्ड्स कम टू पास, हाउ शैल आई ऑर्डर द चाइल्ड एंड हाउ शैल वी डू अनटू हिम, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। ये बड़ा खास एंजल है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड है। मैंने इसका नाम बताया था आपको हिब्रू में, बहुत पहले एक मैसेज में बताया। जूज से मेटाट्रॉन बोलते हैं, थियोफनी है, ये गॉड इन ह्यूमन, ये गॉड इन सेलेशियल बॉडी है। जीसस गॉड इन ह्यूमन बॉडी है, दिस इज गॉड इन सेलेशियल बॉडी। तो क्या लिखा है, मनोहा said unto Manoah, of all that I said unto the woman, let her beware, angel बोलता है, she may not eat of anything that cometh of the wine, neither let her drink wine or strong drink, nor eat unclean things। 14 वचन पढ़ रहा हूँ, 13 अध्याय न्यायियों की पुस्तक। All I commanded let her observe, जो मैंने आज्ञा दी उसकी वो पालना करे। And Manoah said unto the angel of the Lord, I pray thee, let us detain thee until we shall have made ready a kid for thee। हम तेरे लिए मेमना तैयार करके लाते हैं, रुक जा। तो एंजल क्या कहता है, and the angel of the Lord said unto Manoah, though you detain me, I will not eat of thy bread, if thou wilt offer burnt offering। हालेलुया। कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा, यीशु मसीह कहता है अपने जलाली स्वरूप में, प्री इनकार्नेट जीसस, लेकिन तू यहोवा के लिए होम बलि चढ़ा। दाउ मस्ट ऑफर इट अनटू द लॉर्ड, यहोवा के लिए होम बलि चढ़ा। फॉर मनोहा न्यू नॉट दैट इट ही वॉज एन एंजल ऑफ द लॉर्ड। मनोहा को पता नहीं कि वो किससे बातें कर रहा है। तो लिखा है, एंड मनोहा सेड अनटू द एंजल ऑफ द लॉर्ड, व्हाट इज दाई नेम। वही बात जो मूसा ने पूछी, आग की जलती झाड़ी में यहोवा की जलाली यहोवा की हजूरी उतरी है, और मूसा पूछता व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इससे पूछता व्हाट इज योर नेम, दैट व्हेन दाई सेइंग कम टू पास वी मे डू दी ऑनर, ताकि जो तू कहता जब पूरा हो जाए तो हम तेरी प्रतिष्ठा करें। एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड अनटू हिम, व्हाई आस्केस्ट दाउ आफ्टर माई नेम। तू मेरा नाम क्यों पूछता है। अब सुनिए ध्यान से, सीइंग इट इज सीक्रेट, क्योंकि मेरा नाम क्या है, सीक्रेट है। आपको मालूम ओरिजिनल हिब्रू में क्या लिखा है, क्या लिखा है ओरिजिनल हिब्रू में, तू मेरा नाम क्यों पूछता है। यहां पे लिखा है सीक्रेट, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन में लिखा इट इज वंडरफुल। जहां से वर्ड निकलता है वाह, और उसके संग गुरु जोड़ते हैं लोग, वाह के संग गुरु जोड़ा जाता है।
वो कहता है फॉर माई नेम इज़ वंडरफुल, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ हिब्रू में क्या वर्ड है। हिब्रू में वर्ड है पेले। पेले, माई नेम इज़ पेले। आपने सुना एक बहुत वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर का नाम था पेले। पेले इज अ हिब्रू वर्ड। पेले मीन्स वंडरफुल। हालेलुया। हिज नेम शैल बी कॉल्ड पेले एड। यशाया की भविष्यवाणी है, उसका नाम होगा अद्भुत, वंडरफुल काउंसलर, पेले एड। कौन है पेले एड? द लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ। अवी आदि, अवी आदि का मतलब वो इटर्नल फादर होगा, एवरलास्टिंग फादर। सर शलोम, शांति का प्रिंस होगा। हालेलुया। उसने बोला माय नेम इज वंडरफुल। इट इज जीसस हु स्टूड देयर। यीशु मसीह वहां पे आया, और कौन सी जगह पे आया? बोकीम नाम की जगह पे। हालेलुया। इसके विषय में मैं शाम को कंटिन्यू करूंगा। बहुत अद्भुत संदेश अभी बाकी है इसके अंदर। प्लीज़ 6 o'clock वापस आइएगा, और प्लीज़ और लोगों को संग में जोड़िए। कम से कम 1-2 नए लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि वो परमेश्वर के जीवित कलाम का प्रकाश हासिल कर सकें। शाम को हम इसके ऊपर और बात करेंगे, बाकी का मैसेज शाम को। प्रभु आपको आशीष दे। लेट मी प्रे। लॉर्ड, आई प्रे दैट यू ब्लेस योर पीपल, गिव देम द एबिलिटी टू assimilate your word. May it sink deep down into their soul and spirit and may this word settle down in their bone and bone marrows, and may this word transform your people and draw your people closer to you. May they walk in more passionate and close relationship with you. Pele, wonderful Jesus, we bless you, we love you. तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। शाम को 6 o'clock इसे ही कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ 6 बजे आ जाइएगा, औरों को संग में जोड़िएगा। स्प्रेड आउट दिस वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। 6 PM, आमेन।